Hi, welcome once again to Legal Budget. Recently मेरे पास कुछ matters आए हैं without disclosing the identities, but because there were so many sections under the criminal category which was the petitioner was guided for. So I thought of sharing it with you because not many females are aware of it कि हम कहाँ कहाँ उनको सिर्फ इतना पता है कि या तो हम पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं या CAW में जा सकते हैं अगर कुछ भी harassment, cruelty का मैटर है. Yes, I provide my legal services at many major platforms pro bono, and I do not encourage people with petty issues to go and overburden the courts with their false litigations, and you keep fighting the cases for years to come because जहाँ हम सूट टू रिकवरी डालते हैं, जहाँ हम डिवोर्स को कंटेस्ट कर रहे हैं, एट टाइम्स वहाँ पे भी 8-9 साल बहुत इजीली लग जाते हैं, एंड इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी. ऑल्सो यू आर overburdening the courts. So though financially it is causing us lawyers a lot of money if we do not go into litigation, but still there is a social responsibility, and me and my team, including the seniors and the juniors, we have decided to tackle such matters over call conferencing, over VCs, and in person if it is possible, through counseling, get it settled and get into the divorce petition signed, get the divorce petition and the MOU signed amicably, sitting across the table. If required, counseling we will provide, the reports of counseling also we will give to you. So this saves a lot of cost in terms of litigation, and when kids are involved, I don't think it is wise decision to waste 7, 8 or 9 precious years of your life fighting all these cases जहाँ पे किसी एक के फेवर में डिसीजन आ गया या अनजस्ट डिसीजन आता है. यहाँ पर जब दो लोग सेपरेट हो रहे हैं तो द पर्पस शुड नॉट बी बदला लेना या किसी को परेशान करना. With due respect to everybody in the legal fraternity, because this is the bread and butter, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ मैं देखती हूँ कि लोग गुस्से में, जो भी केस कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, वहाँ गुस्सा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो एनकरेज कर रहा है कि हम तो जूते घिसवा देंगे, माफी मंगवा देंगे, घुटनों पर ले आएंगे, वही तारीख पे तारीख ले रहे हैं. बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे लॉयर्स जाते भी नहीं हैं, जूनियर्स को भेज देते हैं, केसेस पेंडिंग है सालों से, कोर्ट्स ओवरबर्डन है और लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि अब केस डाल चुके हैं, कुछ नहीं हो सकता. और जब भी एक डिवोर्स का मैटर फ्लोर पर जाता है तो सिर्फ एक केस नहीं डलता है, वहाँ पे मल्टीपल सूट्स डलते हैं. सो इफ यू कैन अवॉइड दोज मल्टीपल सूट्स, इट इज़ अ लॉस टू अस फाइनेंशियली. लेकिन अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो आपको म्यूचुअली सेटल कर लेना चाहिए. एंड दोज हू से कि हम लॉयर्स की बहुत हैवी फीस नहीं दे सकते हैं या दे चार्ज बॉम्ब एंड एवरीथिंग, जब आप इंटरिम मेंटेनेंस के लिए फाइल करती हो, जब आप अपने डोमेस्टिक वायलेंस DD एक्ट के अंदर फाइल करते हो, वहाँ डैमेजेस फाइल करते हो, whatever you are paying a lawyer is hardly 10% of what you are making the claims for. And anything that you receive as a maintenance and alimony amount is non-taxable. Otherwise, if you would be paying taxes on such amounts, which it will cost you definitely much more. So, please be very thoughtful. I request everybody who approaches a lawyer also, because let's discuss. Without disclosing the identity, there are 2 matters on floor जहाँ पे genuinely females have suffered and they have not come out of their houses for the sake of their children or just to save the marriage, because it was a love marriage, long-term courtship was involved against the parents, intermarriage, interreligion, and the females are suffering in silence because they took this decision that they want to go ahead and marry without parents' permission, and now their families are not there to support. So there are incidences where females were the victim of marital rape.
There was a financial cruelty inflicted upon them. They were forced to undergo abortions. There are two such matters जहाँ रियल टाइम क्रूअल्टी हुई है. अदरवाइज आई वुड नॉट डिनाई एज एन एडवोकेट कि मैं सिर्फ फीमेल्स के केसेस ही नहीं लड़ रही हूँ ना. मैं हस्बैंड्स के लिए अग्रीव पार्टी कैन बी एनीबॉडी. जहाँ फॉल्स एलिगेशंस लगाए जाते हैं, 498 का मुकदमा चलता है हस्बैंड के अगेंस्ट और वहाँ इतना कुछ सच्चाई नहीं भी होती है मैटर. तो वी फाइट एंड वी डिफेंड बोथ द पार्टीज. लेकिन जहाँ रियल टाइम क्रूअल्टी है वहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी. लास्ट वीडियोस मैंने हस्बैंड्स के लिए बनाया था, तो अभी यहाँ पे फीमेल्स के those who are tolerating the marital rape, those who are tolerating any kind of forced abortion, जहाँ पे रियल टाइम क्रूअल्टी इन्फ्लिक्ट की गई है, voluntarily causing hurt to them, harassment है, mental, physical and mental, which is emotional as well, physical and financial. Financial cruelty is also the real cruelty, you know. और जहाँ डाउरी डिमांड है, जहाँ डायरेक्ट शादियाँ नहीं हुई, जिन लोगों ने आर्य समाज मंदिर में कर ली, कोर्ट में शादी कर ली, या अगर प्रॉपर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी भी हुई है, किसी की गुरुद्वारे में हुई है, उसके बाद रिसेप्शन थ्रो करने के लिए बोला गया पेरेंट्स को, जब फैमिलीज इन्वॉल्व हो गई, बच्चों ने शादी कर ली, जहाँ फैमिलीज जाके इन्वॉल्व हो गई, फिर गिफ्ट एक्सचेंज होने शुरू हुए, तो एक्सपेक्टेशंस कम्युनिकेट होनी शुरू हो गई. एंड दोस एक्सपेक्टेशंस की वी एक्सपेक्ट कि इतना खर्चा किया जाए रिलेटिव्स के लिए, ये गिफ्ट चाहिए, ये गोल्ड, ये सिल्वर, कपड़े, गाड़ी, व्हीकल डिमांड किया जा रहा है. व्हाट इज दिस? दिस ऑल इज कवर्ड अंडर डाउरी. तो वहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिमांड डाउरी की गई, इफ नॉट एट द टाइम ऑफ सात फेरास और बिफोर, बट आफ्टरवर्ड्स व्हेन द गर्ल इज ऑलरेडी मैरिड और धीरे धीरे उसके घर वालों से गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं या मांगा जा रहा है, जो भी डिमांड की जा रही है, दैट कवर्स अंडर डाउरी. Any kind of cheating in sense कि जहाँ पे joint funds हैं, wives are earning or they have a jewelry or they've been provided some cash or they have a bank balance and उसको एक under natural love and affection खर्च करवा दिया, ट्रांसफर करवा लिया किसी के नाम पर, या उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया है. आपने शादी के टाइम पे बिल्कुल इंफॉर्मेशन गलत प्रोवाइड करी थी रिगार्डिंग योर जॉब, health status, regarding your family background or religion. This also amounts to cheating and misrepresentation of facts. वहाँ उन केसेस में क्या ऑप्शंस है, कितने सूट फाइल होते हैं, कौन से सेक्शंस लगते हैं, when misrepresentation of facts is there or concealing the fact. आप किसी को बता रहे हो तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट. लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी बात है, कोई हेल्थ इश्यू है, be it physical or mental health issue, और आप उसको छुपा कर रख रहे हो, कंसील कर रहे हो, then concealing of fact is again a criminal offense. It's deception, misappropriation of funds. Joint account है, joint funds है, lockers है, jewelry है. मैंने previous वीडियोस में ये डिस्कस किया है कि anything which she receives as a gift from the parents, anything which she has purchased out of her own property or which she has received as gifts from the relative will be jewelry, cash, movable, immovable property that becomes a स्त्रीधन, a female स्त्रीधन. अगर आप उसके साथ छेड़खानी करते हो या जबरदस्ती लॉकर पे बंद रखते हो, उसको नहीं देते हो, तो ये मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स में आएगा. अगेन आपके ऊपर एक क्रिमिनल लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, बिकॉज स्त्रीधन के साथ तो आप फिडलिंग नहीं कर सकते. रिकवरी सूट डलते हैं, बहुत साल तक मुकदमे चलते हैं फॉर द रिकवरी सूट, लेकिन स्त्रीधन के लिए सीधा पुलिस में कंप्लेंट की जा सकती है, CAW में कंप्लेंट की जा सकती है. जब क्रूअल्टी का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के मुकदमे डाले जाते हैं, उसमें स्त्रीधन की चर्चा होती है, एंड यू आर इन ट्रबल्ड वाटर. सो व्हाई टू मेस अप विद ऑल दिस? एंड देन फिजिकल वायलेंस इन्वॉल्व है, जिसमें वायलेंस कैन बी धक्का मुक्की, ऑल्सो वायलेंस कैन बी आप किसी को पीट रहे हो, मार रहे हो, एंड इट इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक. आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल्स एज वेल. अगर आप हथियार, ये all these jokes and memes apart, if you are physically using violence और आप हर्ट करती हो अपने हस्बैंड को, तो आपके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी क्रिएट होती है.
ऑलरेडी पुलिस कंप्लेंट्स फाइल हो जाती हैं, मुकदमे कोर्ट में पहुंच जाते हैं, एक दूसरे की रेपुटेशन को भी बहुत नुकसान पहुंचाया जाता है, वहां पर भी एक दूसरे के पास ये हथियार है। एनीथिंग रिटन स्पोकन which injures your reputation, which harms your reputation, जिसकी वजह से आपकी नौकरी पर कोई इफेक्ट पड़ता है, आपकी सोशल इमेज पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको कोई मॉनेटरी लॉसेस इनकर हो सकते हैं। Posting something on the social media, any threat to injure a person's reputation or property, और उसको उस थ्रेट देकर कोई काम बनवाया जाए या उसको कंप्लेन करने से या मुकदमा लड़ने से रोका जाए, दिस अमाउंट्स टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन। Any act or any threat that you can injure a person's reputation or physically you can injure, that can cause a person hurt to do any act such as threat. So threatening a person, again FIR की जा सकती है उसके अगेंस्ट। और अगर आपको कोई फोर्स करता है कि आप अपनी पुलिस कंप्लेन वापस ले लो मेरे अगेंस्ट, आपने जो भी मेरे पर मुकदमा किया है, गलत एलिगेशंस लगाए हैं, उसके लिए थ्रेट करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्लैकमेल करता है, 198A में आपके पास प्रोविजन है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, सेक्शन 503 ऑफ IPC। इंसल्ट एंड अनॉयंस, आजकल हस्बैंड वाइफ किस किस चीज के लिए नहीं घसीट रहे दूसरे को कोर्ट में। तो यहाँ पर when we advise somebody, we advise them कि जहाँ सारी चीजें कवर हो जाए, बहुत सारी चीजें हैं which we do not even talk about, which we ignore कि हाँ मैरिड है और इतना झेलना है और ये सब चल जाएगा। You don't have to. There is a section in IPC for each and every little thing that you are going through, so you should be aware. So for any insult and annoyance, criminal intimidation, chapter 22 IPC में mentioned है, you always have a legal remedy for that. इंजरी के लिए डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं। इंजरी कैन बी बॉडीली इंजरी, कैन बी टू योर माइंड, टू योर रेप्यूटेशन। सो सेक्शन 44 IPC में इंजरी मेंशन्ड है। मैंने डिफेमेशन के लिए एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, एनीथिंग व्हिच हार्म्स योर रेप्यूटेशन और एनीबॉडी हु थ्रेटन्स टू डू सो, देन अगेन अ क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर IPC अराइजेस। जहां पे ऑफ IPC में किसी भी तरह की इंजरी के लिए आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, बी इट बॉडी, माइंड और रेप्यूटेशन। ये मैंने आपको बता दिया। जब एक पुलिस कंप्लेंट फाइल होती है या CAW में कंप्लेंट जाती है फीमेल के थ्रू, तो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू 498A क्रूअल्टी, और क्रूअल्टी का मुकदमा चलता है बाकायदा। उसके बाद आप DV एक्ट में जाते हो, इधर आप कंटेस्ट करते हो उस डिवोर्स को या फिर आप म्यूचुअल ग्राउंड्स पे डिवोर्स देने के लिए तैयार होते हो, which is done when parties are counseled, they are sitting across the table and an MOU is understood and signed by both the parties. So please clear your doubts unless and until you are satisfied and you are aware of all the legal rights and remedies that you have. Keep up.